हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट वेरियस पार्ट्स। नंबर 1 इज द पेयर ऑफ ovaries, second pair of oviduct, third uterus, fourth vagina, fifth external genitalia means vulva, sixth a pair of vestibular gland and a pair of mammary gland. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वन इज द ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी, क्योंकि दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। साथ में ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स वॉल्वा, एंड देन अ पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इन सब में इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है ओवरी। इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी इज द sex organ in female reproductive system and which produce ovum, also the various kinds of hormones. Near about the 5 types of hormones secreted by the ovary. So there is the secretion of ovum and secretion of hormones is the important function of female reproductive system. The basic fundamental function of ovary is the secretion of ovum and hormones. These hormones control the regulation of secretion of ovum and also the maintain other functions in the ovary. Also the hormones produce secondary sexual characters in female. Now discuss the main point of the female reproductive organ is ovary. So ovary is the basic sex organ of female reproductive system. It is about oval shape structure near about 3 centimeter in length, 3 centimeter in length 1.5 centimeter in wide and 1 centimeter in thick. Ovary is the oval shaped structure which near about 3 centimeter in length, 1.5 centimeter in wide and 1 centimeter in thickness. This is the structure which present in abdominal cavity below the kidney and attached with the various filaments to the uterus and abdominal part. Also it consists a oviduct which attached to the ovary and uterus. Secrete the hormone is progesterone, estradiol, relaxin, activin and inhibin. These 5 hormones secreted by ovary to maintain regularity and secretion of ovum. Now structure of the ovary differentiate into 2 parts. One is the cortex and another is the medulla. Ovary is differentiated into 2 parts.
outer part is known as the cortex and inner part is known as the medulla. Cortex and medulla, which is the part of the ovary which made up with the germinal epithelial cells, which made with the germinal epithelial cell, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनी हुई रहती है कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट। दिस पार्ट, स्पेशली मेडुला पार्ट, इज रिच विद द नर्व्स, ब्लड वेसल्स, lymph vessels. Ovary consists masses of cell is known as the ovarian follicle. Ovarian follicle. This ovarian follicle laterally maturate and produce the eggs is known as the oocytes. oocytes. ओरियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो ये कन्वर्ट होता है एक एग्स में, या प्रोड्यूस करते हैं वेरियस एग्स, इज नोन एज द oocytes. ये oocytes प्रोड्यूस करने के लिए ओरियन फॉलिकल को और एक सेल प्रोड्यूस करना होता है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, जिसका नाम है ग्राफियन follicle. ये ग्राफियन follicle is responsible to mature the ovum and provide a protective environment to the ovum. तो ग्राफियन follicle जो बनता है ऐसा सेल जिसके इनर पार्ट में एक तरह का साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस होता है, जिस साइटोप्लाज्म में oocytes फॉर्म होता है बाय द ओरियन फॉलिकल. तो रिस्पॉन्सिबल होता है ओरियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओरियन फॉलिकल ओसिस प्रोड्यूस करता है, वो ओसिस लैटरली कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, और इस तरह से. लेकिन जब ओवम के पहले ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो वो प्राइमोर्डियल फॉर्म में होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म में होता है. उसके बाद वो प्राइमरी फॉलिकल में चला जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में चला जाता है, उसके बाद उसका कन्वर्शन ग्राफियन फॉलिकल में होता है. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर फिर oocytes फॉर्म होता है, oocytes बाद में कन्वर्ट हो जाता है ओवम में. और जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी में आता है तब वो कॉर्टेक्स सरफेस की तरफ मूव होता है, और कॉर्टेक्स सरफेस की तरफ आने के बाद वो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर को रप्चर करके वहाँ से ओवम को बाहर प्रोड्यूस कर देता है. जब ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज करता है उसको बोलते हैं ओवुलेशन. Ovulation, the process of release of ovum from ग्राफियन follicle is known as the ovulation. तो एक ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी का, उसके अंदर कई स्टेजेस होते हैं. जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज के स्टेजेस होते हैं, उसी तरह से ओवरी के अंदर भी 28 डेज के स्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं. बेसिक जो सेल होता है वो है ओवरियन फॉलिकल. ये ओवरियन फॉलिकल लॉट ऑफ नंबर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, और जर्मिनल एपिथेलियल के नीचे ये ओवरियन फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं. जब ओवरियन फॉलिकल एक कोई भी oocytes को मैच्योरिटी की तरफ प्रोड्यूस करता है तब उसके लिए वो ग्राफियन फॉलिकल सेल प्रोड्यूस करता है. जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के अंदर oocyte डेवलप होता है, मैच्योर होता है, उसके लिए ग्राफियन फॉलिकल एक सफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, नरिशमेंट देता है, जिसमें ओवम मैच्योर होता है. तो जब ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस होने होता है तो उसके पहले ग्राफियन फॉलिकल जिस स्टेज में होता है वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल. ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल बाद में प्राइमरी फॉलिकल, बाद में सेकेंडरी फॉलिकल इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है. ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योरिटी में आता है तो उसके अंदर का ओवम भी मैच्योरिटी में आता है. तो ये पूरी स्टेजेस 28 डेज में कंप्लीट होनी होती है, और उसके बाद ओवम रिलीज होता है. तो रिलीज करने के लिए ग्राफियन फॉलिकल कॉर्टेक्स सरफेस की तरफ आता है और उसको रप्चर करके ओवम को बाहर रिलीज कर देता है. तो रिलीजिंग द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, इस प्रोसेस को ही बोला है ओवुलेशन. जब ओवुलेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो मैच्योरिटी स्टेज होती है जिसमें ओवुलेशन प्रोड्यूस होता है. तो ये स्टेजेस जनरली 7 to 14 डेज के बीच में हो जाती है. 7 to 14 डेज में ओवुलेशन प्रोड्यूस हो जाता है. उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम. ये कार्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन करने के बाद, ओवुल बाहर निकलने के बाद खुद को एंडोक्राइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको कार्पस ल्यूटियम बोला है. और ये कार्पस ल्यूटियम फिर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है,
और वो हार्मोन फिर ओवुल को मैच्योरिटी के बाद फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर ये प्रोसेस ख़त्म होने लगती है। अगर सपोज स्पर्म नहीं आते हैं और ओवुल फर्टिलाइज नहीं होता है, तब एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है और ओवुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से कार्पस लूटेम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और 20 डेज का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर सपोज स्पर्म आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस लूटेम फिर से एक्टिव हो जाता है और सेकंड हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो एक तरह से फर्टिलाइज फ्यूटस को, एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए और कई तरह के चेंजेस बॉडी में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से ओवरी में एक 20 डेज का साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ द ओसीड्स, प्रोडक्शन ऑफ द ओसीड्स टू मैच्योरिटी, रिलीज एंड लास्टली कन्वर्सन ऑफ द कार्पस ल्यूटेम, ये पूरा साइकिल उसमें आता है। तो बच्चों यही है ओवरी का फंक्शन कि ओवरी स्टार्टिंग में जो सेल प्रोड्यूस करती है वो ओरियन फॉलिकल सेल होते हैं, इन ओसिड्स रिलीज करते हैं। कम से कम 40,000 ओसिड्स ओरी में प्रेजेंट होते हैं वो, और हर मंथ में वो ओसिड्स रिलीज होते रहते हैं। रिलीज करने के लिए प्राइमरी जो फॉलिकल है, जिसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोला है, ये एक्टिवेट होते हैं, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह ग्राफेन फॉलिकल प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर ओसिड डेवलप होता है और फिर ओसिड्स कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, फिर वो बाहर आता है जिसको ओवुलेशन बोला है। उसके बाद ग्राफेन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कार्पस लूटेम में, और कार्पस लूटियम फिर सिक्रेट करता है हार्मोन, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया रहता है और वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और ओम को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, और इस तरह से एक्टिविटी उसकी एंड हो जाती है 28 डेज में। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरी। ओवरी एक्टिवेट होती है और रिलीज ऑफ ओम प्रोड्यूस करते वो 13 एज से लेकर 45 टू 55 एज तक इसका प्रोडक्शन चालू होता है। तो 12 टू 13 एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो ओवरी एक्टिवेट होती है, ओम सिक्रेशन प्रोड्यूस कर देती है और इस तरह से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग पीरियड में कम से कम 2 लाख ओसिड्स ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी की तरफ आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो 40,000 ओसिड्स रिमेन रहते हैं इन द ओवरी, एंड देन ईच मंथ प्रोड्यूस 1 ओवम। तो नियर अबाउट 466 नंबर ऑफ एग्स आर ओवम रिलीज एट अ टाइम ऑफ लाइफ स्पान ऑफ फीमेल। उसके बाद ये जो ग्राफिन फॉलिकल जो बनता है वो जब ओवम सिक्रेट करता है तो उसके से बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल जो होते हैं वो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ग्राफिन फॉलिकल मेड विद द डबल लेयर मेम्ब्रेन। ग्राफिन फॉलिकल made with double layer, one theca externa and theca interna, 2 लेयर से बना होता है। इसके सेंटर में कैविटी होती है कॉल्ड एंट्रम, और जिसमें ओसिड्स रहते हैं, तो ग्राफिन फॉलिकल एक डबल लेयर से बना हुआ सर्कुलर सेल होता है। इस सेल के 2 लेयर होते हैं, थीकल एक्सटर्ना आउटर लेयर का नाम है और थीका इंटरना इनर लेयर का नाम है। इनर लेयर के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम है एंट्रम, जिसमें ओसिड सस्पेंडेड रहता है। ये जो ओसिड्स इसके अंदर रहता है, ओसिड जिस सेल से बना होता है उस सेल का नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा द सेल्स विच कवरिंग द ओसिड। उसके अंदर भी एक कैविटी होती है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड का नाम है लिक्वोर फॉलिकुली। तो ग्राफिन फॉलिकल मेड विद डबल लेयर which known as the theca externa, theca interna. Inside the graphene follicle, a space which filled with the liquid known as the antrum, and there is the ओसिड suspended। ओसिड भी एक स्मॉल सेल होता है जो
कोरोना रेडिएटा नाम के सेल से बना होता है, जिसके सेंटर पार्ट में लिक्विड होता है जिसका नाम है लिक्वर फॉलिकल। तो इस तरह ग्राफीन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वो है ओविडक्ट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं। ओविडक्ट इज द पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। नेक्स्ट इज द ओविडक्ट। Oviduct is the pair of horizontal tube which start from the ovary and end at the uterus। वो ओवरी से स्टार्ट होती है, यूटेरस में एंड होती है। यूटेरस के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में अटैच होती है यूटेरस को, विच कनेक्ट बोथ ओवरीज। इट इज नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट इज नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, ओवरी से स्टार्ट होती है, यूटेरस को एंड होती है और ये यूटेरस और ओवरी को कनेक्ट करती है। ये हॉलो मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके इनर साइड में एयर फॉलिकल्स होते हैं, एयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं, और एयर फॉलिकल्स, एयर लाइक फिलामेंट जो होते हैं वो ओवम को, जो ओवरी से बाहर आता है, उस ओवम को यूटर की तरफ पुश करने के लिए, मूव करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द ओविडक्ट जो ओवम को मूव करते हैं। ओविडक्ट का अनदर नाम है फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का अनदर नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट इज a long tube which forward the ovum from ovary to uterus. Oviduct also divided into 3 part। ओविडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट इन फंडिबुलम, सेकंड है एम्पुला एंड थर्ड है इस्थमस। दिस इज द 3 पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 पार्ट दिए हुए हैं। एक है इनफंडिबुलम, सेकंड है एम्पुला एंड थर्ड इज द इस्थमस। इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो फिंगर की तरह उसका पार्ट होते हैं, जो ओवरी को अटैच होता है, और इसका काम होता है कि जो भी ओम सीक्रेट हो रहा है ओवरी से, उसको कैच करना और फैलोपियन ट्यूब में फॉरवर्ड करना। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पार्ट होता है उसका नाम है फिम्ब्री। उसका नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री। दिस इज द फिंगर लाइक hair projection present the first part of the oviduct which catch ovum and forward to the fallopian tube या oviduct। इसमें सिलिया जैसा पार्ट होता है। इस पार्ट में ओवम को मूव करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए वो सिलिया जैसा पार्ट फिम्ब्री को हेल्प करता है। उसके बाद है एम्पुला पार्ट। इट इज द स्ट्रेट लाइक ट्यूब पार्ट प्रेजेंट जस्ट एंड ऑफ द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है स्ट्रेट ट्यूब का, वो है एम्पुला, और ओम का फर्टिलाइजेशन इसी पार्ट में होता है। उसके बाद जो इस्थमस पार्ट है वो नैरो ट्यूब पार्ट है, एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो यूटर की तरफ मूव होते रहता है। तो ये हो गए हमारे ओविडक्ट के बारे में। अब हम कंटिन्यू करते हैं यूटेरस के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूटेरस। Uterus is the main part of reproductive system which act to develop and grow the embryo inside the uterus. Uterus consists 3 parts: fundus, body and cervix. यूटेरस हैलो मस्कुलर चेम्बर होता है जो मसल से बना हुआ पार्ट होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो ग्रोथ होता है। यूटेरस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस इज द अपर पार्ट विच कनेक्ट विद द फैलोपियन ट्यूब, बॉडी इज द सेंटर मेन पार्ट एंड सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस फ्रॉम वजाइना। तो वजाइना में जहाँ यूटेरस ओपन होता है उस पार्ट को सर्विक्स बोला है। यूटेरस नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक एक मस्कुलर पार्ट होता है।
यूटेरस 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिक एक हालो मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, तो फंडस अपर पार्ट विच कनेक्ट बोथ फैलोपियन ट्यूब, बॉडी इज द मेन पार्ट एंड सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूटेरस इन द वजाइना। यूटेरस मेड विद द 3 लेयर्स, यूटेरस का वॉल जो होता है 3 लेयर से बना होता है। इट मेड विथ 3 layers, one perimetrium, second is the myometrium and third is the endometrium. This is the 3 layer of यूटेरस। यूटेरस की आउटर मोस्ट लेयर है पेरीमेट्रियम, जो एक थिक फाइबरस टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। सेकंड है मायोमेट्रियम लेयर, दिस इज द मस्कुलर लेयर, मसल से बनी हुई स्मूथ मसल से बनी हुई मायोमेट्रियल लेयर होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम, दिस इज आल्सो मेड विद द एपिथेलियल सेल टिश्यू से बनी हुई एक थिन लेयर होती है। ये तीनों लेयर का काम होता है खुद को एनलार्ज, यूटेरस को एनलार्ज करते वक्त एक्सटेंड होना, और इस तरह से की बनावट होती है कि उसको एक्सटेंड करते हैं। साथ में जब एम्ब्रियो ग्रोथ होता है इसके अंदर, तो उसको कुशन जैसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना, उसको एंडोमेट्रियम से स्टिक करके उसको ग्रोथ करना, और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रोथ होता है यूटेरस को ग्रोथ करने में उसका स्ट्रेचनेस एक्सेप्ट करने के हिसाब से ही ये लेयर बनी होती है। इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है ताकि वो स्ट्रेच होते रहे। तो इस तरह से यूटेरस 3 लेयर से बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द वजाइना। Vagina is the next part of uterus which start from the cervix and end at the outer part of the body। तो ये बॉडी के आउटर पार्ट तक से लेकर सर्विक्स तक बना हुआ एक हैलो मस्कुलर ट्यूब होती है जिसका नाम है वजाइना। इट इज़ नियर अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके ओपनिंग को वजाइनल ओरिफिस बोलते हैं, वजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। इसके ओपनिंग को वजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। तो इट इज द मस्कुलर कैविटी वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट टू सर्विक्स। इट इज नियर अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज नोन एज द वजाइनल ओरिफिस। उसको वजाइनल ओरिफिस कहते हैं। ये जो इनर लेयर होती है इसमें कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं इसको मॉइस्ट रखने के लिए, इसका पीएच मेंटेन करने के लिए। साथ में इसमें ये मस्कुलर लेयर से बनी हुई इलास्टिक नेचर का पार्ट होता है जो स्ट्रेसनेस सहन कर सकता है, इस तरह का ये पार्ट होता है वजाइना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल genitalia is also known as the vulva, the outermost part of the vagina. This is the outermost part of the vagina. It consists 5 parts and it consists 5 parts. Number 1 is vestibule, B labia minora, C clitoris, next labia majora and mons pubis। This is the 5 parts present in the vulva। नंबर 1 पार्ट इज द वेस्टिबुल। वेस्टिबुल नंबर 1 पार्ट है जो यूरेथ्रा और वजाइना को कनेक्ट करते हुए जोड़ते हुए एक मस्कुलर लेयर प्रोड्यूस करता है, वो है वेस्टिबुल विच कनेक्ट बिटवीन एनक्लोज बिटवीन द यूरेथ्रा एंड वजाइना। सेकंड पार्ट है लैबिया माइनोरा। दिस इज द फर्स्ट इनर पोर्डिंग लेयर विच प्रोटेक्ट द इनर साइड ऑफ द वजाइना। Next is the clitoris. Clitoris is the small sensitive projection attached with the labia minora and it consists the erectile tissues। ये erectile tissue से बना हुआ आता है। Next है labia majora। labia majora outermost thick layer of
vagina which cover and protect the vagina. Then mons pubic is the outer upper part which consider pubic part of the vagina. तो वेस्टिब्यूल एकदम इनर का पार्ट होता है जो वजाइना को यूरेथ्रा को अटैच करता है, कनेक्ट करता है। लैबिया माइनोरा इनर फोल्डिंग है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लिटोरिस ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ इनर पार्ट है जो एंटीरियर और लैबिया माइनोरा को अटैच होता है। उसके बाद लैबिया मेजोरा द अपर पार्ट जो लैबिया माइनोरा के ऊपर एक थिक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन ऑफ वजाइना करती है। और मॉन्स प्यूबिक इज द अपर पार्ट विच कंसिडर हेयर लाइक प्रोजेक्ट। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।